امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا کہ 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی ہے اور ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ نے بھی کہا تھا کہ امریکی فوج تو ایران کے خلاف باغیوں کو مسلح نہیں کر رہی، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی حکومت کے دیگر حصے ممکنہ طور پر اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل پچھلے 1 سال سے کرد ملیشیا کو مسلح کر رہے تھے اور نجف کے صحرائی علاقے میں 4 سے 7 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کردوں کے لیے اسلحہ گرایا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ عراق کے سرحدی صوبوں سے کرد ملیشیا کا کوئی شخص داخل نہیں ہوا۔ ایران نے عراقی کردوں پر مبینہ حملہ کر دیا جس سے ان کے ٹھکانوں میں آگ لگ گئی۔ روسی میڈیا کے مطابق عراقی کردوں پر ایران نے یہ حملہ رات گئے کیا جس میں کئی ٹھکانوں کی تباہی واضح ہے جبکہ جگہ جگہ آگ پھیلی ہوئی ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ترک سفارتی ذرائع کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا کہ تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ اس سے پہلے ایران نے ترکی پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ایران کا فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ میزائل کا ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترکی نے بیلسٹک میزائل فائر کرنے پر انقرہ میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کر دی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ریپبلکنز کے 53 اور حزب اختلاف ڈیموکریٹس کی 45 نشستیں ہیں جبکہ 2 آزاد امیدوار ڈیموکریٹس کے حق میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ بولے جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے 5ویں روز ہی کہہ دیا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ بولے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے تو میں نے کہا 15 نمبر دوں گا۔ I think I can say, and you see it as I think I can say, and you see it as well as I do. You see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. A big factor was Soleimani, the killing of Soleimani in my first term. And maybe the biggest factor was the rebuilding of the military in my first term. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it really was a complete obliteration of their nuclear potential. And that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں
तंबीह नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान के इसराइल के शहरों तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे पर हमले। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद हमले, 10 ड्रोन्स तबाह। हिज़्बुल्लाह का तल अबीब के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। कहा इसराइली आयरन डूम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। बुध को बैरूत पर इसराइली हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए थे। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों की तेहरान समेत दीगर शहरों पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज का तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया गया। ईरान के आबदोज समेत मुतादद बहरी जहाज तबाह करने के दावे। 6 रोज से जारी हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 1045 हो गई। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद बरसा चुकी है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि फ़िलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफ़वाज दाखिल करने का कोई इरादा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी सदर समझते हैं कि ईरान जंग पर उन्हें अमरीकियों की हिमायत हासिल है। ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं कि ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। ईरान में फ़ौजी कार्रवाई के बाद अमरीका का ईरान में क्या किरदार होना चाहिए, सदर ट्रंप अपने मुशीरों से मुशावरत कर रहे हैं। स्पेन अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। स्पेन ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। चीन ने मशरिक़ वस्ता में सालसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी भेजने का फैसला किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन सऊदी अरब के तहम्मुल और इख्तलाफात पुरअमन तरीके से हल करने के मौक़िफ़ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए, ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। वांग यी ने जहाज़रानी के लिए बहरी रास्ते महफूज होने पर भी जोर दिया। उन्होंने अमाराती नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी बात की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन सहूनी अमरीकी फ़ौज की जारहियत ने हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता न छोड़ा। पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है और इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका के 7 दौरों में सदर ट्रंप को कायल कर लिया था कि वो उनके राय की हिमायत करें। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। इंटरव्यू में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि एक रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया कहे कि हमने आयतुल्लाह ख़ामेनी को मार दिया, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमज़ोर कर दिया और मुस्तक़बिल ईरानी अवाम पर छोड़ दिया। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां सिटी सदर रोड पर गोदाम में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जे न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर बताएगा। जी, रावलपिंडी सिटी सदर रोड का इलाका है। यहाँ पर गुज़श्ता रोज शाम 6 बजे एक गोदाम में आग लगी। करीबन 12 घंटे गुजर जाने के बाद अब बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें 12 घंटों से फायर फाइटिंग ऑपरेशन में मसरूफ थी। रेस्क्यू काम का कहना है आग बोरिंग के मोटर्स के गोदाम में लगी थी। 13 इमरजेंसी गाड़ियों समेत 50 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थे। आग इमारत के बेसमेंट में लगी थी। बेसमेंट में आने जाने का कोई मुनासिब रास्ता भी नहीं था। धुएं के अखराज का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं था। वासर
रावलपिंडी और जिला इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मावनत कर रहे थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। रेस्क्यू काम के अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमला भी मौके पर मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सिबगतुल्लाह से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इमारत में प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी बड़ी मिकदार में मौजूद थी। इमारत के बेसमेंट में गोदाम में बोरिंग मोटर्स का ऑयल भी बड़ी मिकदार में मौजूद था। ताहम बेसमेंट में जाने का मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था और रास्ता बनाना पड़ा, लिहाजा रेस्क्यू की टीमों को मुश्किलात का सामना रहा है। ताहम अब बताया जा रहा है कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शब्बीर। गिलगित शहर में 3 रोज से नाफिज कर्फ्यू गुज़श्ता शब 12 बजे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उधर अस्पताल में ज़ेर इलाज एक और ज़ख्मी बच्चा जान की बाजी हार गया। इस तरह एहतजाज के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई है। तर्जुमान GB हुकूमत शब्बीर मीर के मुताबिक गिलगित में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे, जबकि तमाम सरकारी दफातर और बैंक्स आज से मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी किस्म के जुलूस, रैलियाँ और इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक PHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज एक और ज़ख्मी बच्चा जान की बाजी हार गया है। इस तरह एतवार के रोज़ रहबर आला ईरान आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत और अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो चुकी है, जबकि तसादुम में ज़ख्मी 11 अफराद अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह कैंट पर मिसाइल हमले में 2 राहगीर शहीद हो गए। DPO सजाद हुसैन के मुताबिक मिसाइल DC कंपाउंड में वाक़ गवर्नर कॉटेज के करीब गिरा। मिसाइल धमाके से करीबी दफातर की खिड़कियां और शीशे भी टूट गए। मिसाइल नामालूम समत से फायर किया गया था। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। मोटरसाइकिल पर M टैग लगवाने के लिए अवाम ख्वार हो गए। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी बारी ना आई। काउंटर पर कुर्सियां खाली। M टैग लगाने के लिए सिर्फ एक शख्स ड्यूटी पर मामूर है। दुआ मिर्जा से मजीद जानेंगे। जी, इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों पर M टैग लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है और डेडलाइन जो दी गई है उसके बाद मोटरसाइकिलें फेडरल कैपिटल में नहीं चल सकेंगी। इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स जो खिदमत सेंटर्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया है और 9 से 5 की टाइमिंग रखी गई है। किसी किसी खिदमत सेंटर के पास 9 से 9 बजे तक भी टाइमिंग का मार्जिन है और 2 खिदमत सेंटर ऐसे हैं जिनको 24 घंटे के लिए डिक्लेयर किया गया है। लेकिन फिर भी बर्डन इतना ज्यादा है कि मैं जहां तक यहाँ पर देख रही हूँ मुझे लोगों की कतार नजर आ रही है और खातून भी मेरे साथ मौजूद है। खवातीन के कोई काउंटर्स किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर कोई काउंटर ही मौजूद नहीं है और अभी इनके पास जा रहे हैं तो कहते हैं कि ये एक ही काउंटर है और एक ही बंदा काम कर रहा है। अब रमजान है, सबके रोजे हैं, सब लोगों ने जॉब पे भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, लेकिन ये सारे यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। आपकी अपनी स्कूटी है? जी, मेरी अपनी स्कूटी है। तो अभी तक आपका M टैग नहीं लगा? नहीं, मेरा भी तक नहीं लगा। कोई लाइन भी नहीं है जहाँ पे आपने? कोई लाइन भी नहीं है और कोई लेडीज काउंटर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेडीज काउंटर यहाँ पर नहीं है और इस्लामाबाद में अब चूंकि स्कूटीज और बाइक्स का भी ट्रेंड है और दूसरा यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, सर क्या मसला है? सीनियर सिटीजन का कोई काउंटर नहीं है। ठीक है। और इतना रश है, एक बंदे को बिठाया हुआ इन्होंने। मैं सुबह तकरीबन 4-4:30 बजे। लोग कल रात 12 बजे के आए हैं और तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का टाइम अब हो चुका है, लेकिन अभी इनकी बारी नहीं आई और सिर्फ एक वहाँ पर स्टाफ मौजूद है जो इनको केटर करने की कोशिश कर रहा है। वर्क फोर्स नहीं है, डिसेबल के लिए कोई काउंटर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, खवातीन के लिए नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है और आम लोग भी इसमें हमें ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम और साइम अयूब को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। फखर जमान और हसन नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। 11 मार्च से शुरू होने वाली 3 मैचेस की सीरीज में शाहीन अफरीदी क़यादत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए नौजवान और तजर्बेकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दौरे के लिए शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखा है। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़,
हुसैन तलत, मुआज़ सदाकत, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी, शामिल हुसैन, साद मसूद, साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा शामिल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला किया गया है। सरफराज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज से जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच का ओहदा खाली था। अजहर महमूद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अबूरी हेड कोच थे। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज से जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से शुरू होगा।